Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST. My dear student, as you know that your unit test is at hand, so that's why you have to do very hard work, because in this your test, the different chapters which I have already sent you about in your, I mean to send you about this syllabus. I have already informed you, and even I sent in your group also. You have to see there. Dear student, as I told you that this year what I observed that 2 SST book, 2 SST book हिस्ट्री के पोर्शंस में है. The old book have 12 chapter and the new book has 10 chapter. नया जो किताब है उसमें 10 चैप्टर हैं हिस्ट्री में. जो पुरानी बुक है उसमें 12 चैप्टर है हिस्ट्री में. तो 2 चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन हमने आपसे कहा था कि ओनली 1 चैप्टर आपके चैप्टर से डिलीट होंगे. लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आपके उन चैप्टर को ना कवर करूं जो डिलीटेड है सीबीएसई के. बट इट इज गुड फॉर यू इफ यू विल रीड दैट चैप्टर. What I am telling you, my dear student, why I am telling you, कि मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ, वो चैप्टर बड़े ही इंटरेस्टिंग है. इवन उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप नहीं होंगे, फिर भी अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर यू. 1 चैप्टर जिसके बारे में हम लोगों ने बात की वो था विजुअल आर्ट्स वाले. आप चैप्टर को देखिएगा, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. उस चैप्टर पे हमने चर्चा नहीं की है. बाकी एक्सेप्ट उसके सारे चैप्टर्स जितने भी हैं हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने उस पर चर्चा की, हम लोगों ने उसको देखा. अब ट्राइबल दिकूस एंड द विजन्स ऑफ गोल्डन एज, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर पे भी सीबीएसई ने इसको भी आपके सिलेबस से हटाने की बात कही. सो द चैप्टर विच इज गिवन इन योर सिलेबस दिस ईयर, इट इज ओनली 10 चैप्टर. अब इस 10 चैप्टर में मैंने सिर्फ एक चैप्टर रिड्यूस किया, विजुअल आर्ट का. अगर वो चैप्टर देखें तो आपको नई वाली बुक में नहीं दिया है. चैप्टर देखें तो हाउ, वेन एंड वेयर. फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक में हाउ, वेन एंड वेयर. इस चैप्टर में हम लोगों ने तमाम सारे पॉइंट्स को पढ़े. कौन कौन से टॉपिक्स थे इसमें? हाउ, वेन एंड वेयर में अगर आप देखें तो हम लोगों ने इसमें देखा कि हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स. डेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. व्हाट इज द डेट्स, कैसे इतिहास में डेट कैसे जरूरी है. माय डियर स्टूडेंट, if you have remember my that class, I told you that the without chronology history has no existence. क्रोनोलॉजी ना हो तो इतिहास नहीं रहता. इतिहास के लिए जरूरी है कि उसमें क्रोनोलॉजी दी गई हो, कालक्रम हो, तिथियां हो, डेट्स हो. अब डेट होंगे. अब किस डेट की बात करता है? विच डेट्स. तो डेट में कहता है कि by which criteria do we choose a set of date as important? The date we select
The dates around which we compose our story of the past are not important on their own. They become vital because we focus on the particular set of the events as important. If our focus of study changes, if we begin to look at new issue, a new set of dates will appear significant. Consider an example. In the historians written by British historians in India, कहता है the histories that was written by the British historian in India. So, the rulers of each governor general was important. The histories began with the rule of the first governor general Warren Hastings and ended with the last governor general Mountbatten. In the separate chapters, we read about the deeds of theirs. Wellesley, Bentinck, Hastings, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin. It was the seemingly never-ending succession of Governor General and Viceroy. All the dates in this history, activist politics, achievements, it was, if there was nothing outside their list that was important for us to know, the chronology, their lives making, and the different chapters of the history of British India. Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of the different group and the classes in Indian society within the format of these stories of the Governor General? My dear student, what in this topic it is clarified by author that the date which is important for those people, ये डेट उन लोगों के लिए जरूरी थे जो उस समय के इतिहास लिखवा रहे थे, और ये इतिहास लिखने वाले कौन थे और इतिहास किसके बारे में लिखा जा रहा था, ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं. Because the writers who wrote the history, if he influenced this particular king, particular empire, administration, or the elite class, their history writings turned around them. I mean to say that he influenced with them and he wrote about their opportunities, their victories, their qualities, but he forget that the other part also he had to explain. That is the main things. How, when and where में इन चीजों को हम लोगों ने पढ़ा. My dear student, Jacob worked hard in Europe. First time, he emphasized that the history is not only the political history. Even his teacher, Leopold von Ranke, taught him that when you will start your history writings, you have to focus the political files, articles, documents, gadgets, and diaries also. On the basis of that, you have to try to write about their opportunities. But their disciple, Jacob Burckhardt, who felt that no, only the political history writing is not the history writings, except it, the other part is also the very important in history,
that would be the cultural history, सांस्कृतिक इतिहास। और फिर इस तरीके से हम लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा, हम लोगों ने उस चैप्टर में इसकी बात की। इसमें कई सारे चैप्टर थे, हाउ डू वी नो द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस वर्ड्स, और फिर व्हाट इज द कॉलोनियल, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, एंड देन आफ्टर इन लास्ट वी हैव क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट the changes, the roles of the diaries, the roles of the things which play important role in history. The second chapter, from trade to territory, from trade to territory, from trade to territory, the company established power. The company established power. क्या हुआ इस चैप्टर में? establishes. इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा what we studied in this chapter. My dear student, if you have remember, if you will read this chapter, then you have clear evidences, clear information, clear fact. आपको साफ साफ सब कुछ मालूम चलेगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से फॉरेन जो कंपनीज थी वो भारत में आई। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और तब फ्रांसीसी, ये 5 कंपनियों के बारे में, भारत में उनके आगमन और फिर भारत में उनके प्रभाव के बारे में हम लोग इसमें बात की। हम लोगों ने इसमें देखा कि किस तरीके से राज्य का विस्तार हो रहा था, किस तरीके से फाइनली 2 बड़ी कंपनियां फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में अपने को स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ने लगे। अ लॉट ऑफ वॉर हैपेंड विद द ब्रिटिश एम्पायर एंड द फ्रेंच। फ्रांसीसी, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, फ्रांस और ब्रिटिश कंपनी के बीच एक लंबा युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रांसीसी कंपनी, बोथ इन्वॉल्व इन वार, कर्नाटका वार। I taught you about that Karnataka war, which happened 1746 to 1763. Karnataka war first, Karnataka war second, Karnataka war third, then after Mandibas, and last the Treaty of Paris. पेरिस की संधि के बाद ये खत्म हो गई और हमने ये बात जान ली कि अब भारत में शासन कौन करेगा, फ्रांसीसी या अंग्रेज। ये तय हो गया था पेरिस की संधि से कि भारत में शासन करने वाला अब जो कंपनी होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, ब्रिटेन की कंपनी होगी, ब्रिटिश कंपनी होगी। उन लोगों ने अपने को भारत पर स्थापित कर लिया। कैसे स्थापित किया, फिर भारत में उन्होंने किस तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज किया लोगों को, किस तरीके से भारत की औद्योगिक व्यवस्था को अपने अंडर में किया, एक व्यापारी के रूप में आए और धीरे धीरे भारत में एक रूलर के रूप में शासन करने लगे। किस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे राजनीतिक मामलों में पहले इंटरफेयर किया, फिर उनको अपने अधिकार में लिया, उनकी टेरिटरी को कब्जा कर लिया। पहले उन्होंने व्यापार पे कब्जा किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने उनके टेरिटरी पे कब्जा किया और एक बार फिर उन्होंने क्या किया, लास्ट तक आते आते उन्होंने पूरे भारत पे अपना अधिकार कर लिया। तो इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। थर्ड चैप्टर, द रूलिंग द कंट्री साइड। थर्ड चैप्टर, द रूलिंग कंट्री साइड। रूलिंग कंट्री साइड, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या था, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि जब बैटल ऑफ बक्सर हो गए, बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, तो अंग्रेजों को भारत में शासन करने का पूरा पूरा अधिकार मिल गया। इट मीन्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में।
और फिर इन लोगों ने भारत में केवल अपने को व्यापारिक छूट न दी, बल्कि उन्होंने भारत से रेवेन्यू भी कलेक्ट करना शुरू किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उन्होंने नए नए लैंड सेटलमेंट इंप्लीमेंट किए, इंट्रोड्यूस किया। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था जमींदारी सेटलमेंट्स, मैंने कहा था रैयतवारी सेटलमेंट, मैंने कहा था महालवारी सेटलमेंट। तीनों के बारे में मैंने बात की। मैंने कहा था ये संपूर्ण भारत के 19% पे थी, ये 51% पे थी और ये लगभग 29% पे थी। तो ये जो हमारे पास आंकड़ा मिलता है और इनसे जो इनकम हो रही थी, इनकम कितनी मिली? कहता है कि अंग्रेजों ने इनकम सेट किया जो मुगल काल में रेवेन्यू सेट थी, कितनी? 3,75,00,000। लेकिन जमींदारी सिस्टम में ये कलेक्ट होती थी कितनी? 11,37,00,000। तो बड़े पैमाने पे थे। इट मीन्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, द एक्सप्लॉयटेशन of peasants. My dear student, if you have remember, I suggest you that you have to watch the movie Mother India. मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप लोगों को एक मूवी देखनी चाहिए, और मूवी कौन सी होगी? मदर इंडिया। और फिर हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था ट्राइबल दिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, चैप्टर 4 रिड्यूस कर दिया गया। फिर भी चैप्टर 4 में इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू दैट यू हैव टू रीड द चैप्टर 4। व्हाई? बिकॉज having read this chapter you have clear information about the role of the Adivasis, tribal peoples, in the national movement. They also protest the British policies which was forcibly imposed on their area. जो उनके राज्यों में, ट्राइबल्स के क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स के द्वारा नीतियां डाली गई, इम्पोज की गई, वो काफी डिस्क्रिमिनेटिव थी, वो काफी पीड़ादायक थी। उसका विरोध किया वहां के ट्राइबल्स ने। मैंने आपसे कहा था इस विद्रोह को बताते हुए बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू जैसे ट्राइबल लीडर के बारे में मैंने बात की थी। इन लोगों ने अपने अधिकारों के लिए अपने लोगों को संगठित किया। They unite their own peoples against Britishers. They tried to fight. लड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किया। They fought, लड़े। It does other mean that what happened, the result. But they mention their objection. उन्होंने अपने प्रतिरोध को, अपने विरोध को दर्ज कराया, दर्शाया कि ये गलत है। Where we read the Dikus, what is the meaning of Dikus? Dikus, it means outsiders. मुंडा रिवोल्ट, उलगान रिवोल्ट, भील, चुआर, हो, अहोम, a lot of revolt, series of revolt we had seen. हम लोगों ने देखा, we had discussed also about some of them in our chapter. इस चैप्टर में हम लोगों ने उस पर बातें भी की। On the basis, we had clear information about that, the role of the tribals. The chapter 5, which we discuss, which we read, chapter 5 is
I think. Okay, let me explain the chapter 5. When people reveal, when people reveal 1857 and after. When people reveal 1857 after. This is also very important chapter. In this chapter, the different topics which we study, हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लोगों ने ध्यान दिया. कौन कौन से थे वो टॉपिक्स जिस पे हम लोगों ने बातें की? That topic was the policies which was implemented by Britishers. Topic: Nawab loses their power. Topic: Sipai and peasants. Topic: responses of reform from Mir to Delhi. And then after the different topics, कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने राज्य पे कब्जा किया, और फिर आफ्टरमाथ, that was the last topic which we covered in my last class. आफ्टरमाथ में हम लोगों ने बातें की और कहा कि किस तरीके से रिवोल्ट के बाद की परिस्थितियां बदली और किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में अपनी पॉलिसीज, जो पुरानी पॉलिसीज उसको चेंज की. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, इनाम कमीशन, समरी सेटलमेंट्स, लैक्स लो की रूल्स, एंड दिस टाइप ऑफ a series of law that was cancelled by the British government, and East India Company rule also abolished. Crown took the charge of India. The cabinet member, I mean to say that one member who was the British cabinet, he took charge as a Indian secretary, and with the help of Council of India, where the 15 members, 8 were appointed by the British government and 7 was appointed by the board of directors, he started work, and Governor General of India became viceroy. He was directly responsible for the monarch of England. अब वो राजा के प्रति सीधे उत्तरदायी था. इट मीन्स अब वायसराय क्या बना? एजेंट बना, और एजेंट के रूप में वो शासन करने लगा. तो इस तरीके से बदलाव है. ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी बदली. उन्होंने भारत में जो रिफॉर्म कर रहे थे उन्होंने उस पर रोक लगाया. उन्होंने भारतीय सभ्यता, भारतीय जो परंपराएं थी उनका सम्मान किया, और उसके सम्मान में उन लोगों ने अपनी चीजों को बनाए रखा. भारत के तमाम सारे सांस्कृतिक जो प्रैक्टिसेस थी, कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, विच वाज reformed by the Britishers aftermath, after revolt, they cancelled. I mean to say that aftermath they clearly defined that we will not take the further step and we will respect the ideology of Indian people. भारत के लोगों के विचारों का समर्थन करेंगे, भारत के लोगों की जो सोच है, जो नीतियां हैं, उनको सपोर्ट करेंगे. These all topics which we covered. My dear student, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सारी चीजें रिवोल्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, मंगल पांडे के बारे में पढ़ा हम लोगों ने बेगम हजरत महल, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहेब, अवंतीबाई, कुंवर सिंह,
बहुत सारे नाम हमने, बिजरिस कादिर, बहुत सारे लोगों के नाम हमने इस चैप्टर में पढ़े जिन्होंने अपना बलिदान दिया। दे सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर द नेशन, फॉर आवर कंट्री, अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज। But suddenly we had seen that the revolt that was suppressed by the Britishers, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उसको सप्रेस किया। बहादुर शाह जफर को एग्जाइल दे दी गई एंड 1862 में वो रंगून में बेचारे मर गए। तो कहता है कि परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही थी, चेंजेस आ रहे थे, और इस चेंजेस ने एक बड़ा बदलाव किया। और उसका परिणाम हुआ, आप 1885 में भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित हुई। कांग्रेस दैट वाज द ग्रुप ऑफ द मॉडरेट इंडियंस। AOU was Irish, and the British officers who did their work in India, they felt that कि एक ऐसा बनना चाहिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ के लोगों के अधिकारों की बात करे। और ये उन लोगों ने किया, हुआ भी। कांग्रेस की स्थापना, और फिर भारत में एक नए तरीके की पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलपमेंट दिखाई देता है। हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से भारत में संविधान का निर्माण हुआ। और हम लोगों ने एक चैप्टर पहले का जो हमने पढ़ा कि भारत में किस तरीके की नेशनल मूवमेंट चले, कौन कौन नेताओं ने इसमें काम किया। One of other very important chapter which we studied, that was the social reform and role of women in Indian movement. हमने रिफॉर्म के बारे में पढ़ा, जहाँ सती सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा, जहाँ पे हम लोगों ने अनटचेबिलिटी के बारे में बात की, जहाँ पे हम लोगों ने अपर क्लास लोअर क्लास के डिस्क्रिमिनेशन की बात की, जहाँ पे हम लोगों ने ज्योतिबा फुले, पेरियार, BR अम्बेडकर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे महान नामों पर चर्चा की हम लोगों ने। एंड देयर रोज टू द रिफॉर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। लोगों ने अपने अपने तरीके से भारतीय समाज को, भारतीय सभ्यता को एक नया स्वरूप देने की बात की। दीज आर ऑल बी स्टडीड। हम लोगों ने इस पर बात की, चर्चाएं की, देखा। तो ये SST के तमाम सारे चैप्टर्स आप लोगों को तैयार करने हैं, एक्सेप्ट दो चैप्टर विच आर नॉट डिस्कसिंग हियर बिकॉज lack of the time. I mean to say that we will discuss the topics which we left today. हम जो आज छोड़ रहे हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे, उन चैप्टर पे भी चर्चा करेंगे जिन 60 में जो चैप्टर हम लोगों ने स्टडी भी स्टडी डाल। हम स्टडी जो हम लोगों ने बात की रिवोल्ट 1857 पे, रिबेल्स पे, टुमारो वी विल कवर दोज टॉपिक्स विच वी नॉट डिस्कस टुडे। हम लोगों ने जिन चीजों पे बात नहीं की, उन चीजों पे, उन चैप्टर्स पे बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, SST is very important chapter. Not only SST is important for you because it is the study of the society. What is happening around you, आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, इन चीजों के अध्ययन को एक्सप्रेस करता है, बताता है, दिखाता है। तो प्लीज डोंट टेक इट कि ये बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है, चले नहीं। You should take it seriously, and this is very interesting for you if you will start to read. आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, when you will start, तो आपको लगेगा कि नहीं, दिस इज द वेरी, आप कुछ मजा आ रहा है।
कुछ चीजें चल रही हैं। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू कि एसएसटी क्यों इंपॉर्टेंट है। द bunch of subjected you have to read in SST. In your class 8, you have to read 3 subjects: history, geography, and civics. But in your senior classes, it means class 9th and onwards, you have to read 4 subjects in SST. I mean to say that in the humanities portion. In 9th, 10th, you have to study the 4th chapter: history, geography, political and economic. इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, इट मीन्स सिविक्स, जिसको आप सीनियर क्लासेस में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। अर्थशास्त्र, इट मीन्स इकोनॉमिक। ज्योग्राफी, भूगोल। हिस्ट्री, आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं, इनको पढ़ना चाहिए। वी शुड स्टडी अबाउट दैट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, उन चीजों पे बातें करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुड बाय एंड टेक केयर।